आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सबसे पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है, दैट इज पॉइंट मास। पॉइंट मास किसको कहते हैं ये आप सब पढ़ चुके हैं और आपने एग्जामिन भी किया किस बॉडी को पॉइंट मास कहेंगे और किसको पॉइंट मास नहीं कहेंगे। तो पॉइंट मास का उल्टा क्या होता है? पॉइंट मास का उल्टा होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पॉइंट मास में एक और सिस्टम में मेनी। इफ देयर आर मेनी पार्टिकल्स located at certain distance and then the complete body will be known as one system of particles. लेकिन अगर हम उसको एक फैमिली बनाते हैं then there are certain preconditions. The conditions are that all the particles will maintain distance between them. Whenever we apply force on that system, the force is distributed, force is given to all the members will start moving. They will remain together. If there is a displacement, the complete all the particles will go. जैसे there is one car has got many members in it. All the four wheels, the body, the passenger inside the car are all are the system members. And wherever this system is going, the velocity of all the members is same. ठीक है? There is another system, another car, another bus. That system has got a different velocity. It is moving in the different direction, and this system is moving in one direction. So one family of particles which are bound to each other with certain conditions, that will be known as one system of particles. ठीक है? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की मोटी सी डेफिनेशन आपको समझ में आती है कि वो सब पार्टिकल्स का आपस में एक रिलेशन होगा। सो वी विल कॉल इट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम जो वर्ड जनरल वर्ड यूज करेंगे, दैट विल बी ए बॉडी। और पार्टिकल का मतलब क्या होता है? सिंगल, पॉइंट, और ऐसे बहुत सारे मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और ऑल दीज पार्टिकल्स विल हैव सर्टेन कंडीशन विद देम। ओके, देन दिस बॉडी मे बी ऑफ टू टाइप्स ऑफ बॉडी। ये दो टाइप में व्हाट वी आर कंसर्न इज ए रिजिड बॉडी। देखिए, आई गिव यू वन एग्जांपल, दिस व्हेन आई प्रेस इट हियर, इस पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 सेंटीमीटर। इस पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। यहां मैंने इसको रोक के रखा हुआ है, ये इसे देखिए, यहां पर मुझे 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट करना है, मैंने दबाया, हुआ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें भी क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें भी 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर से इस केस में क्या हुआ था? ये वाले पार्टिकल को देखिए और ये वाले को देखिए, ये आपके लेफ्ट में है। लेफ्ट वाले पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट वाले में नहीं हुआ। तो जिसमें दोनों हर पार्टिकल में एक जैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी नोन एज रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी है और ये स्पॉन्जी बॉडी है। ठीक है? फ्लेक्सिबल बॉडी है। तो बॉडीज दो तरह की, रिजिड और फ्लेक्सिबल। ठीक, अब रिजिड बॉडी की स्पेशलिटी क्या है? रिजिड बॉडी की स्पेशलिटी, whatever is the displacement of one particle, the same is displacement of the other particle. Whatever is velocity of one particle, the same will be velocity of the other particle. इसको अगर मैं ऐसे ले जाऊंगा तो ये भी साथ में जाएगा। So this is rigid body. Now we come to motion. Particle, single particle, system of particles, and in system of particles two type of bodies, flexible body and rigid body. Now we come to the motion of rigid bodies. Nomenclature of the motion. There are nomenclatures which depends upon whether the body is a point mass body or it is a rigid body. When it is point mass body, point mass,
that is a single particle, and there may be a system of particles. We will call it a rigid body. System. Okay, in this the type of motions are linear. You understand what is linear motion? A particle going in a straight line. Circular, a particle making a circular path, going on a circular path. Everybody knows what is a circular path. It is path of a point which is always at a fixed distance from the fixed point. It is always at a constant distance from a fixed point. ये point जैसा चलेगा, it will have the same distance. So this motion will be known as circular motion. Then this will have another motion, that is oscillatory. Oscillatory. Now the system of particles. This is a system of particles and it moves like this. Rigid body. This is a rigid body which moves like this. I will not call it a linear motion. In place of that, I will call it translatory motion. Translatory. Translatory. All the particles are moving parallel to each other. All the particles moving in a straight line and they are parallel to each other. ये ऐसा चला, देखिए ये कैसे लाइन जा रही है और ये कैसे जा रही है, ऐसे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो ये भी ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है. सबकी लाइन के बारे में सोचिए, सब लाइनें कैसी बन रही हैं? पैरेलल टू ईच अदर. When a system of particles, in a system of particles, if all the particles are moving in such a way that their paths are parallel to each other, then we will call it a translatory motion. This is translatory motion. Okay. All particles move parallel to each other. This is translatory motion. Okay. Then, if the particles, if it is a system of particle, this is a system of particles, and all the particles are moving in this way. This. Now, this is moving with less velocity, this is moving with larger velocity. In translatory motion, all are having same velocity. All particles move parallel to each other. All have same linear velocity. Now, this is translatory. Okay. Circular motion. This is a particle. This is making a circular motion this way. This is another particle. This is making a circular motion. But they do not have same velocity. देखिए, ये इसे मैं ऐसे घुमा रहा हूं, पंखे जैसे. This point is making a small circle. इतना सर्कल. And this particle is making a large circle. दोनों को टाइम एक बराबर लगता है, same time. That means this has got a larger velocity, this has got a smaller velocity. दोनों की velocity अलग अलग है, हो सकती है, लेकिन ये कौन सी velocity है? Linear velocity. Angular velocity अगर हम बोलेंगे तो जितनी देर में ये एक चक्कर लगाएगा उतनी ही देर में ये भी एक चक्कर लगाएगा. फिर से this takes 5 seconds to make 360 degree, this also takes 5 seconds to make 360 degrees. तो क्या इक्वल है दोनों की? Angular velocity. So if there is a system of particle, rigid body is there and all the particles are moving in such a way that they have got same angular velocity.
same angular velocity, then that body is making a rotational motion. Which motion? Rotational. We will not use the word circular. फिर से, each particle is making a circular motion, because what is that? Each particle, one particle. The whole body is making a rotational motion. Difference समझ में आया? We have to use the word circular when there is a single particle. We have to use the word rotational when there is a system of particles. एक से ज्यादा particles हैं और उनका आपस में relation क्या है? All will be making, all are moving parallel to each other, all are having similar angular velocity. ठीक है? Then that body is making a rotational motion. Is this point clear to all? Okay, so rotational motion, we will write the definition, rotational motion. So I will write it here. Rotational motion. When a body is moving in such a way that all particles are making circular motion with similar angular velocity, then this system is making a rotational motion. One particle, this is other particle, this is another particle, all are making circular motion. They are all related to each other because it's a rigid body. In rigid body, the distance between them do not change. ये जो distance है, ये distance है, ये distance है, all the distances will not change. That is why what it is? Rigid body. They are making a motion in such a way that every particle is making circular motion in the same time. So this motion is known as rotational motion. Is this point clear? Okay. Now we will again analyze it differently. Translatory motion. Translatory. When a system is going in a straight line, there is a system of particles. It is moving like this. What motion it is? Translatory motion. Okay. And if it goes like this, what is this? This is rotational motion. Okay. In rotational motion, there are certain different terms we have to understand. One is the point about which the rotational motion is made. That is center of rotation. There is one straight line that is known as axis of rotation. So these 2 points you have to understand. यहां पर देखिए, ये एक पॉइंट है, ये इसके चारों तरफ मूव कर रहा है. Now this particle is also moving about the same point. Radius, radius, radius. For this is the radius, but everywhere it is same. For this point, this is also moving about the same point. So in rotational motion, there will always be a single point about which all the particles are making circles. There has to be. और उसको हम क्या बोलेंगे? That point is center of rotation. Okay, that is center of rotation. Now you suppose the body is a large body like this. Yes, we have a body like this and this is making a circular motion. इसका circular motion इस तरह से होता है. Okay, ये इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखिए, ये ऐसा मूव किया, इसका सेंटर कहां है? यहां पर. लेकिन इस पॉइंट को देखिए, इसका सेंटर वहां है. डू दो सेंटर आर इन द सेम, आर द सेम सेंटर?
नो, दोनों पॉइंट क्या एक ही पॉइंट है? नो, दिस सेंटर इज ए डिफरेंट पॉइंट and if this point is making a circular motion, that point is a different point. अब ये वाला जो सिस्टम है, this is only one system. क्यों? All the particles, all the members are at a fixed distance. जब ये मूव करता है, क्या इनके आपस के डिस्टेंस बदलते हैं? नहीं बदलते, नहीं बदलते, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी एंड ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये तो ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये सर्कल बनाता है तो इसका एक सेंटर अलग है, ये वाला पॉइंट सर्कल बनाता है तो इसका सेंटर अलग है, ये वाला पॉइंट सर्कल बनाता है तो इसका सेंटर अलग है। इसको इस तरह से देखिए, ये वाला पॉइंट ऐसे घुमा रहे हैं हम, और ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस R1, ये रेडियस R2, और ये यहां पर ऐसा घूम रहा है लाइक दिस, ये दिस वे। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये इसको हमने देखा ऐसे जाता है इस लोकेशन से और ऐसे घूम रहा है दिस वे। इसका सेंटर यहां पर है, ये वाला पॉइंट ऐसे घूमता है, इसका सेंटर यहां पर है। तो एक रिजिड बॉडी में हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करती है, यस। उसका एक सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, यस। ये जितने सेंटर ऑफ रोटेशन हैं, ये सब सेंटर ऑफ रोटेशन में एक कंडीशन है, ऑल दीज सेंटर ऑफ मोशंस लाई ऑन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। ये यहां वाला ऐसा घूमता है, ऐसा सर्कल बनाता है, ये ऐसा सर्कल बना रहा है, ये ऐसा सर्कल बना रहा है, ये ऐसा सर्कल बना रहा है, ये इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, सबको हमने मिलाया। We will find that this is lying on, all these centers are lying on a single straight line. इस straight line को हम कहेंगे axis of rotation. So axis of rotation किससे बनती है? Axis of rotation consists of all the points which are center of the points of different particles of the system of particle. तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, हर एक का एक एक सेंटर है, हर सेंटर को हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगी? लाइन, और उस लाइन को क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस लाइन की प्रॉपर्टीज देखिए, एक्सिस ऑफ, एक मिनट इधर देखिए, ये जब ऐसे घूमता है, ये इस तरह से घूम रहा है लाइक दिस, ऐसा जब ये घूमेगा तो ये लाइन ऐसी होगी, ये इस पर 90 डिग्री बनाते हुए, ऑलवेज। सो दिस लाइन वी मेकिंग 90 डिग्री ऑन इट। तो कोई भी प्लेन ऑफ रोटेशन, फिर से प्लेन ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट यहां पर है और ये ऐसा घूमा, तो इस पर मैंने ऐसा हाथ रखा, ये रखा, इस प्लेन में ये ऐसा घूम रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? प्लेन ऑफ रोटेशन। ये सारे पॉइंट मिलाकर जो लाइन बनी है उसको क्या बोलेंगे? एक्सिस। प्लेन ऑफ रोटेशन एंड द एक्सिस, दे आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये आपको फैक्ट याद रखना है, the plane of rotation and axis are always at right angle to each other. अब इसकी ये छोटी छोटी चीजें नोट कर लेते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन,
the axis of rotation is always normal to plane of rotation. ये होती है एक्सिस। एक्सिस की और स्पेशलिटी, ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, ये सब क्या हैं? सेंटर्स। देखिए सेंटर वाला पॉइंट नहीं चलता है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, जब मैं इसको घुमाता हूं तो ये पॉइंट नहीं चलता, बाकी सारे पॉइंट चलते हैं। तो सेंटर की स्पेशलिटी क्या है? वो मूव नहीं करता। सभी सेंटर्स को मिला के एक्सिस बनती है, तो एक्सिस के सारे पॉइंट कैसे होते हैं? फिक्स, वो मूव नहीं करते, बाकी सब पॉइंट उनके चारों तरफ मूव करते हैं। ओके, इसके लिए थोड़ा सा वर्ड्स को याद रखिए। एक्सिस के चारों तरफ पार्टिकल घूमते हैं। चारों तरफ पार्टिकल घूमते के लिए आप वर्ड यूज करेंगे, द पार्टिकल्स मूव अबाउट द एक्सिस। अबाउट, अबाउट शब्द जनरली हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? अराउंड। एक्सिस के चारों तरफ घूमना, अबाउट द एक्सिस। ठीक है, तो ये है रोटेशन अबाउट द एक्सिस। अब एक्सिस के सारे पॉइंट फिक्स होते हैं और बाकी सिस्टम के पार्टिकल उसके चारों तरफ घूमते हैं। इससे हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है, रोटेशन की पिक्चर बनती है। ओके, इसको नोट करिए। नाउ व्हाट वी विल प्रैक्टिस इज टू थिंक, टू इमेजिन हाउ विल बी द रोटेशन अबाउट डिफरेंट एक्सिस। रोटेशन अबाउट डिफरेंट एक्सिस, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा ये एक बॉडी है, इसको घुमा दीजिए। घुमाने के लिए देखिए आप इसको कैसे घुमा सकते हैं। ये घूम रही है, फिर से ये घूम रही है। पहले वाले से ये डिफरेंट है कि नहीं? दिस रोटेशन इज डिफरेंट, दिस रोटेशन इज डिफरेंट। और ये रोटेशन देखिए, दिस रोटेशन इज डिफरेंट। इस तरह से अलग अलग रोटेशन आप इसके देख रहे हैं। क्या चीज इसमें बदल रही है? तो आंसर है इसमें एक्सिस बदल रही है। जहां पर मेरी दो फिंगर्स होती हैं वो दोनों फिंगर फिक्स हैं, और फिक्स पॉइंट किसके होते हैं? एक्सिस पर होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाकर एक एक्सिस बनती है। ये और ये दोनों मिलाकर एक लाइन बनी, ये और ये पॉइंट देखिए इस लाइन के नीचे गए, नीचे, फिर ऊपर आए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आए, आगे गए, पीछे आए, पर ये लाइन फिक्स है और ये सब ऐसे घूम रहे हैं। ये जो ऐसे घूम रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फिर से इसको मैं और क्लियर करता हूं आपको। ये एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? मान लीजिए आपने इसको माना एक्स, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस। अब ये ऐसा घूम रहा है, थोड़ा सा इधर से देखिए, ये वाली एक्सिस कौन सी है? एक्स।
ये डायरेक्शन कौन सी है? y, ये डायरेक्शन कौन सी है? z। तो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? देखो, क्या ये पॉइंट पीछे जाता है या इधर आता है? ये x की डायरेक्शन है, तो आंसर है ये पॉइंट x की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। दिखता है? समझ में आ रहा है? ये x है, ये पॉइंट क्या इधर जाता है या इधर जाता है? नहीं, इधर जा रहा है y, इधर जा रहा है z, y z, पर कभी भी ये x में नहीं चलता। तो ये किस में चल रहा है? y z, चेंज हो रहे हैं। क्या नहीं चेंज हो रहा? x। एक्सिस की डायरेक्शन कौन सी है? x। तो जब एक्सिस x डायरेक्शन की होती है तो प्लेन ऑफ रोटेशन कौन सा होता है? y z। ये प्लेन ऑफ रोटेशन, ये इसका प्लेन ऑफ रोटेशन। और ये कौन है? एक्सिस। ये एक्सिस, एक्सिस की डायरेक्शन कौन सी? बोलिए, x। कौन सी डायरेक्शन? x। ये जो ऐसा रोटेट हुआ, इस पॉइंट के कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? y और z। इसलिए इस प्लेन को क्या बोलेंगे? yz प्लेन। तो पार्टिकल कौन से प्लेन में मूव कर रहा है? yz प्लेन में सर्कल बना रहा है। उसकी एक्सिस किस डायरेक्शन में है? x एक्सिस में। ये बात समझ में आई? ओके। अब हम करते हैं y एक्सिस में। देखिए, ये y डायरेक्शन है, तो मैंने क्या किया, इस y डायरेक्शन में ये एक्सिस बना दी, ये एक्सिस। और अब रोटेशन किस में होगा? y को छोड़ के क्या बचे? x और z। ये रहा x, ये रहा z। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखिए, x की तरफ जा रहा है, z की तरफ जा रहा है, x की तरफ जा रहा है, z की तरफ जा रहा है। तो ये कौन से प्लेन में मूव कर रहा है? एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा है। और एक्सिस किधर है? y। तो जब एक्सिस y होती है तो प्लेन ऑफ रोटेशन कौन सा होता है? एक्स जेड। ठीक है। और जब एक्सिस x में थी तो प्लेन ऑफ रोटेशन कौन सा था? y z। इसी तरह से तीसरी कौन सी बची? z एक्सिस। अगर हमने इसको x माना, इसको y माना, तो इसको z मानेंगे। तो ये हमने z लिया। अब बताइए ये घूमेगा कैसे? एक्स वाई कौन सा होता है? ये ऐसा। ये देखिए, अगर ये z है तो इसका ये क्या चेंज हो रहा है? y चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, ये हो सकता है, लेकिन z नहीं चेंज होता। z कब चेंज होगा? जब ये ऐसे ऐसे चलेगा, और ऐसे तो नहीं चल रहा, ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है। तो ये इसके तीन तरह के रोटेशन हुए। एक रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, एक रोटेशन अबाउट y एक्सिस, और एक रोटेशन अबाउट z एक्सिस। ठीक है। ओके। मैं अभी थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आपको इस पर ड्रॉ करके देता हूं। ओके, ये लाइन बनती है, नहीं लिखता इस पे। ओके, ये एक लाइन है, ये लाइन x है, x, और ये मैंने एक दूसरी लाइन बनाई, ये लाइन है y, 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 और ये है x, x। अब बताइए z किधर होगी? ये z, z। ठीक है। अब मैं आप लोग को इसको देता हूं और मुझे घुमा कर बताइए, क्या रोटेशन अबाउट x एक्सिस, रोटेशन अबाउट y एक्सिस एंड रोटेशन अबाउट z एक्सिस। ये तीनों चीजें आपको करनी है वन बाय वन। ओके, तो ये आपने घुमा के देखा इसको, वैसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। x एक्सिस पे घुमाओ ऐसे, y एक्सिस पे घुमाओ, y एक्सिस घूमेगा कैसे? अब यस, ये z एक्सिस पे घुमाना है, ये z है, ये z एक्सिस पे घूमो। इस तरह से जब भी क्वेश्चन में रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, तो आपके दिमाग में फोटो बन जाना चाहिए कि वो कैसा घूम रहा है। ठीक है। तो जो भी z एक्सिस पे घूमेगा उसके कौन से कोऑर्डिनेट्स चेंज होते जाएंगे कंटिन्यूअसली? x और y कोऑर्डिनेट चेंज होते जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी रोटेट इट। इसको अगर हमको डायग्राम बनाना हो, वी विल मेक इट लाइक दिस।
अब ये घूमेगा कैसे, ये ऐसा घूमेगा इसके चारों तरफ, ये अबाउट विच एक्सिस, और प्लेन ऑफ रोटेशन कैसा है, YZ प्लेन में ऐसा घूमेगा, क्योंकि इसका ये सर्कल ऐसा बनेगा YZ प्लेन में। समझ आया? इस तरह से अगर मैं इसको बोलूंगा कि बॉडी का डायग्राम ऐसा बनाइए कि ये Y एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो आप एक्सिस यहां बना दोगे, ये वाली कौन सी एक्सिस हो गई, YY, और इसके चारों तरफ बॉडी ऐसे घूमेगी। इस तरह से एक्स एक्सिस के चारों तरफ घूमना, Y एक्सिस के चारों तरफ घूमना, और Z के चारों तरफ कैसे घूमेगी, सो दैट इज मोस्ट कन्वीनियंट। ये बॉडी ऐसे घूम रही है, ये वाला घूमना, तो ये घूमना कैसा है, अबाउट Z एक्सिस, ये इसके चारों तरफ ऐसे, ये ऐसे Z एक्सिस है। इस तरह से ये 3 एक्सिस के घूमना, रोटेशन अबाउट 3 एक्सिस। Next चीज is sense of rotation. There are 2 sense of rotation and those are clockwise and anti-clockwise. Clockwise, anti-clockwise, ये दोनों आपको मालूम है क्या होता है। अब clockwise और anti-clockwise में mathematical sign, anti-clock positive rotation, clockwise negative. Whenever we need mathematics, we will use it like this. Clockwise and negative and anti-clock is positive rotation. Okay. So this is about direction of rotation, plane of rotation, axis of rotation. अब उसके बाद हम लोग एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें लेते हैं। वन इज सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन सर्कुलर मोशन में होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, सब सेंटर को मिलाकर जो लाइन बनेगी उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज हम और लेते हैं, वो ये है कि we can make a body rotate about any given point। जैसे ये हमने एक बॉडी को रोटेट करना है इस पॉइंट के अबाउट, चारों तरफ, ये देखिए इस तरह से, तो ये पॉइंट के चारों तरफ ये बॉडी घूम सकती है। जो पॉइंट हम चॉइस करेंगे उसे हम सेंटर ऑफ रोटेशन बना सकते हैं। ये एक्सिस और ऐसी एक्सिस के चारों तरफ ये ऐसे घूमेगी। इसी पॉइंट पर अगर हम एक्सिस को बदल दें तो ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे एक्सिस हो गई और इस तरह से ये बॉडी यहां पर घूमेगी। और देखिए कि जैसा हम एक्सिस को टर्न करेंगे, अब ये पंखे को देखो, इसकी एक्सिस बताओ, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है और एक्सिस क्या हुई, करेक्ट। ये जो वर्टिकल रॉड दिख रहा है ये उसकी एक्सिस है। ये वर्टिकल रॉड फिक्स है और फैन घूम रहा है, तो ये उसकी एक्सिस है जो फिक्स है। अब एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसमें ये एक्सिस जो चारों तरफ, जिसके चारों तरफ फैन घूम रहा है, ये एक्सिस खुद भी घूम रही हो। क्या इस तरह का मोशन पॉसिबल है? तो आंसर है यस, इस तरह का मोशन पॉसिबल है। एक सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा रोटेशनल मोशन हो रहे हो। यहां पर देखिए, एक मैं पेरिस्टल फैन बनाता हूं, ये फैन घूम रहा है, ये उसके ब्लेड्स के घूमने की डायरेक्शन है, और ये YZ में ब्लेड घूमते हैं और एक्स एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है इस तरह से। तो ये एक्स एक्सिस और YZ पे फैन घूमता है। अब ये वाला जो एक्स एक्सिस है, जो उसकी रॉड होती है, उसको हम एक स्टैंड पर लगाते हैं और
इस स्टैंड पर हमने एक ऐसा अरेंजमेंट करके रखा है यहां पर कि जब उस गियर को हम स्विच करते हैं तो ये पंखा, ये एक्सिस खुद ही एक रोटेशनल मोशन करने लगती है इस तरह से। सबके घरों में ये पंखा लगा है और सबने देखा है कि हम उसको घुमाते हैं। ये घूमना एक रोटेशनल मोशन है, सर्कल बना रहा है तो एक्सिस खुद एक रोटेशनल मोशन करती है। ये इस तरह से दो रोटेशनल मोशन हो रहे हैं। एक रोटेशनल मोशन पंखा करता है, एक रोटेशनल मोशन एक्सिस करती है। अब ये दो रोटेशनल मोशन हो रहे हैं तो इसमें फिक्स पॉइंट कहां है? देखिए फिक्स पॉइंट कहां है। यहां पर रॉड है, ये इस तरह से ये वाला एक्सिस घूम रहा है। अब आप देखेंगे दोनों का ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये इसका मोशन ऐसे हो रहा है, रोटेशनल मोशन इसके चारों तरफ, और इस एक्सिस के चारों तरफ ब्लेड्स का रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो इन दोनों रोटेशनल मोशन का एक्सिस का जंक्शन पॉइंट एक जगह पर है। एक्सिस के पॉइंट नहीं चलते, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस वाले उसके भी नहीं चल रहे, और जब वो रोटेट करते हैं तो एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जो कि रोटेट नहीं कर रहा है। और ये वाला पॉइंट देखिए, ये फैन ऐसा घूमा और ये एक्सिस ऐसे घूमा। ये जिस पॉइंट पर मैंने एक्सिस को पकड़ा है वो एक ऐसा पॉइंट है जो नहीं घूमता है। ये तो ये एक्सिस भी घूम रही है, ये वाला पॉइंट वर्टिकल वाला नहीं घूमता है। ये वाले पॉइंट को कहते हैं पाइवट। पाइवट हिंदी में धुरी, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट इस पूरे सिस्टम में एक स्टेबल पॉइंट है और ये नहीं घूमता है। सो दिस इज पाइवट। ये ऐसा घूमा, फिर से इसकी एक्सिस के सारे पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में स्टेबल है, नहीं घूमते, लेकिन पंखे के रिस्पेक्ट में। अब ये पूरा एक्सिस खुद ऐसे चल रहा है। ये किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? खड़े हुए स्टैंड के रिस्पेक्ट में ये घूम रहा है। तो खड़ा हुआ स्टैंड इसका एक्सिस है तो उसका हर पॉइंट स्टेबल होगा, खड़ा हुआ होगा। तो ये एक पॉइंट कॉमन मिलेगा जो दोनों में है, और ये दोनों में नहीं चलता है। ऐसे पॉइंट को कहते हैं पाइवट या धुरी। तो एक कंबाइंड रोटेशनल मोशन में जहां एक से ज्यादा रोटेशन हो रहे हो, एक ऐसा पॉइंट होता है जो स्टेबल होगा, विच इज नॉट मूविंग, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज पाइवट। एक पॉइंट पाइवट होता है जो नहीं घूमता है। फिक्स्ड पॉइंट इन द सिस्टम। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप सब भौरा चलाते हैं, लट्टू चलाते हैं, दैट इज टॉप। टॉप चलाएंगे, ये उसकी एक्सिस है और टॉप उसके चारों तरफ घूमता है। ये जब स्लो हो जाता है तो आप देखते हैं कि ये इस तरह से चलना शुरू कर देता है, डोलना शुरू कर देता है। और ये जो उसकी एक्सिस है, ये एक्सिस जो फास्ट चलते समय स्ट्रेट थी, ये खुद घूमना शुरू कर देती है। और ये वाली एक्सिस देखिए किस तरह से ये यहां पर तो पकड़े रहती है, लेकिन खुद ये वाली एक्सिस ये घूमेगी और इस तरह से स्लो हो जाएगी। स्लो होते समय ये ऐसे घूमना शुरू कर देती है। तो ये एक्सिस के सारे पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टॉप ये स्थिर हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, स्टेशनरी हैं विद रिस्पेक्ट टू टॉप।
पर एक्सिस खुद घूम रही है। क्या इस एक्सिस का कोई ऐसा पॉइंट है जो फिक्स है और नहीं घूमता है? यस, यू आर राइट। ये जो नीचे का पॉइंट है इसका, ये नीचे का पॉइंट नहीं घूम रहा है, जो कि ग्राउंड पर है। ये देखिए, ये एक्सिस और ये ग्राउंड पर रखी है, एक्सिस ऐसे घूमती है, तो इसका नीचे का पॉइंट फिक्स है, ये नहीं घूमता है। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें दो रोटेशन हो रहे हैं, टॉप भी घूम रही है और उसका एक्सिस भी घूम रहा है, और ये वाले प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसेशन। प्रेसेशन, देखिए प्रेसेशन में क्या होता है, एक बॉडी मूव कर रही है और ये रोटेशनल मोशन करती है। इस रोटेशनल मोशन में इसकी एक एक्सिस है, ये एक्सिस, इस एक्सिस के चारों तरफ ये घूम रही है और ये एक्सिस खुद ऐसे मूव कर रही है। एक्सिस के ऊपर का पॉइंट देखिए, ये एक्सिस के ऊपर का पॉइंट, ओके, ये हमने दो पोजीशन बनाई जो टॉप की है। टॉप पहले यहां था, फिर ऐसे, और ये जो ऊपर का पॉइंट है एक्सिस का, ये खुद एक सर्कल बनाता है और उसमें घूमता रहता है। ये दो तरह के मोशन है, एक टॉप का रोटेशनल मोशन और एक एक्सिस की टॉप का रोटेशनल मोशन, लेकिन उस एक्सिस के नीचे का पॉइंट फिक्स है। ये एक स्पेशल केस है और इसी का हमने नाम रखा है प्रेसेशन। ये इसमें एक्सिस घूमेगी, ऊपर का पॉइंट घूमेगा। तो याद रखिए, ये इसकी पाइवट यहां पर होती है क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है। कोई भी बॉडी दोनों तरह के मोशन कर सकती है, ठीक है, ओके। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो चीज मैंने आपको बताई, इसे फिर से देखिए। ये मोशन, अगर ये बॉडी ऐसे जाती है तो ये कौन सा मोशन है? प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर ट्रांसलेशनल। ये बॉडी ऐसे घूम रही है, ये कौन सा मोशन है? प्योर रोटेशनल। और ये बॉडी व्हील, चक्का बन के ऐसे जा रही है, ये कौन सा है? मिक्स्ड, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ऐसे को, ये मोशन को यहां पर दिस इज रोटेशनल। अगर ये यहां से ऐसा सीधा जाता हो, ऐसे मैंने बना लिया, मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये यहां पहुंचा, ए बी, ये यहां पहुंचा, ए बी, देन दिस इज ट्रांसलेशनल। और ये इस तरह से ये घूमता है और घूमते हुए ऐसे आगे बढ़ते जाता है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और यहां पर ये आया, दिस इज नाउ ए, दिस इज बी, दिस इज सी, फिर ये यहां आ गया। अब ए नीचे आ गया, बी यहां चला गया, सी यहां चला गया। इस मोशन का नाम, एक नया नाम नोट करिए, रोलिंग। इसके लिए क्या वर्ड यूज करना है? रोलिंग। ये वाला क्या चीज है? ट्रांसलेशनल। हमने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे खींच दिया, ये ऐसा सीधा लिया और ऐसे खींच दिया, ये क्या है? ट्रांसलेशनल। एक ही जगह पे खड़े होके घुमा दिया, ये रोटेशनल। और जमीन पर रख के ऐसा घुमाया, वो क्या हो गया? रोलिंग। ये इस तरह से ये मोशन हो गए। अब अगली चीज हम लोग स्टडी करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन करते हैं और उसको छोड़ देते हैं फ्री रोटेशन करने के लिए, तो वो बॉडी के पास
दो क्वांटिटी होती है, दो टर्म होती है जो हमको समझ में आनी चाहिए। देखिए, एक टर्म ये होती है, हाँ जी लिख लिया सबने, इधर देखिए, ये एक बॉडी है, इसको मैंने घुमाना है और इस पर फोर्स लगाना मैं बंद कर देता हूं, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ये आप देख रहे हैं रोल हो रही है, और जितनी देर रोल हो रही है उतनी देर मैं इसको नहीं घुमा रहा हूं। ये है फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन, जब भी किसी बॉडी को हम फ्री रोटेशन कराते हैं, उसकी एक्सिस तो हम शुरू में फिक्स कर देते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा और ये z एक्सिस है, तो मैंने कैसे घुमाया इसको, अबाउट z एक्सिस, ये इस तरह से z एक्सिस। और अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो अबाउट x एक्सिस, ये मैं फिक्स कर सकता हूं। लेकिन जब भी बॉडी फ्रीली रोटेट होती रही है, तो हमेशा एक ऐसा पॉइंट है जिसके चारों तरफ ये बॉडी रोटेट होती है। वो पॉइंट कभी भी अपनी लोकेशन से हटता नहीं है। इसको सुनिए, समझिए। अगर मैंने इसको ऐसा घुमाया, बॉडी को ऐसा, ये, तो इसकी एक्सिस कहां है, ये लाइन, ठीक है। अगर मैंने इस बॉडी को ऐसे घुमा के फेंका, ये, तो ऐसा घूमती रहेगी हवा में, और इसकी एक्सिस कहां है, ये लाइन। पहले ये लाइन, अभी ये लाइन। जब इस लाइन पे ऐसे घुमा के मैंने फेंका था तो ऐसे घूम रही थी, ये सारे पॉइंट नहीं घूम रहे थे, क्योंकि ये सब क्या थे, एक्सिस के पॉइंट, ठीक, ये सारे स्टिल पॉइंट थे। जब मैंने ऐसे फेंका तो ये सारे स्टिल पॉइंट थे, ये वाले स्टिल पॉइंट नहीं थे, एक पॉइंट अभी भी स्टिल रह गया, कौन सा, यस, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। ये पॉइंट इस लाइन में भी था, इस लाइन में भी था। अब इसको मैं ऐसे घुमा देता हूं और ऐसे घुमा के हवा में छोड़ता हूं, तो ये ऐसे घूमती है। अभी भी आप देख रहे हैं इसकी एक्सिस ये है और वही पॉइंट है। एक पॉइंट ऐसा होता है जो आप किसी भी रोटेशन को किसी भी प्लेन में घुमाइए, किसी भी एक्सिस के अबाउट घुमाइए, वो पॉइंट नहीं चलेगा। देख रहे हैं, होता है कि नहीं, ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, या ऐसे घुमा दीजिए, कैसे भी घुमाइए, एक पॉइंट हमेशा उसमें फिक्स रहेगा। वो वाला जो पॉइंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर ऑफ रोटेशन। Center of rotation. So whenever we rotate a body freely, we allow it to rotate freely without any external force. Then there is always a single point which is never moving, and that point is known as center of rotation, and all the points are moving around this center of rotation. ये होता है center of rotation. A freely rotating body has about any axis has a
सेंटर ऑफ रोटेशन। ये पॉइंट होता कौन सा है? सो आंसर इज दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। This point is center of mass of the system. तो ये जो सेंटर जिसके चारों तरफ एक बॉडी फ्रीली रोटेट करती है वो एक्चुअली कौन सा पॉइंट होता है? सेंटर ऑफ मास, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास की यूटिलिटी क्या है कि वो किसी भी रोटेटिंग बॉडी का सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? दैट वी विल स्टडी नाउ कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रोटेशनल मोशन में यही क्या होता है? सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। अच्छा, ये हमारी एक टर्म बन गई, सेंटर ऑफ रोटेशन। अब दूसरी टर्म जो हम इसमें पढ़ना चाहते हैं दैट इज मोमेंट। मोमेंट ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक। मोमेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? मोमेंट। तो जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई सिस्टम रोटेशन करता है तो उसमें हम एक क्वांटिटी काउंट करेंगे और उस क्वांटिटी का नाम होगा मोमेंट। मोमेंट किसको कहते हैं? मोमेंट इज इफेक्ट ऑफ rotational motion। मोमेंट इज इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। क्या मतलब इसका? इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मुझे एक दरवाजा खोलना है। ये दरवाजा इधर से फिक्स है और मुझे इसको धक्का देकर खोलना है। धक्का देने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं गया दरवाजे के पास, यहां पर हाथ लगाया और फोर्स लगाया। खूब फोर्स लगाना पड़ा, 20 न्यूटन फोर्स लगाया, तब दरवाजा खुला। ऐसा। फिर यहां पर गया, फोर्स लगाया, 5 न्यूटन फोर्स लगाया, दरवाजा खुल गया। ये क्यों? आपने करके देखा है? दरवाजे के पास से अगर हाथ लगाते हैं तो बहुत फोर्स लगाना पड़ता है पूरे दरवाजे को घुमाने के लिए। हम करना क्या चाहते हैं? हम एक रोटेशनल मोशन क्रिएट करना चाहते हैं इस दरवाजे में। वी वांट टू क्रिएट ए रोटेशनल मोशन। फॉर दैट रोटेशनल मोशन वी आर अप्लाइंग ए फोर्स। यहां पर हम फोर्स लगाते हैं तो हम देखते हैं उसका इफेक्ट बड़ा कम होता है। हमने सोचा कि कल तो हम आए थे, यहां इसको ऐसे ढकेला था, 5 न्यूटन फोर्स लगाया, खुल गया। आज भी हम आए, फिर हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, नहीं खुला। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स यहां पर लगाया। ठीक है, नहीं खुला। इस फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हुआ, इस फोर्स का इफेक्ट कम हुआ। तो हम ढूंढने लगे कि ये इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है। कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में कैरेक्टरिस्टिक कौन सी? फोर्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? फोर्स। मोशन कौन सा? रोटेशनल। एक का इफेक्ट ज्यादा, एक का इफेक्ट कम। क्यों? ऐसी क्या चीज है कि वो दरवाजा नहीं खुलता और खुलता है? तो हम बोलेंगे एक का इफेक्ट कम, एक का इफेक्ट ज्यादा। इस इफेक्ट का नाम हमने दे दिया मोमेंट। क्या नाम दिया? मोमेंट। तो ये वाले 5 न्यूटन फोर्स का मोमेंट ज्यादा है, इसका मोमेंट कम है। ये बोलेंगे। इफेक्ट की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? मोमेंट। सो दिस फोर्स हैज लार्जर मोमेंट, दिस फोर्स हैज लेस मोमेंट। तो कैलकुलेशन कैसे करिए? अब मुझे ये बताइए कि ये वाले फोर्स में और ये वाले फोर्स में कौन सी क्वांटिटी बदल रही है? सबको दिखता है ये डिस्टेंस बदल रहा है। इस फोर्स में ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। पॉइंट ऑफ रोटेशन है,
तो यहां से ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है, तो हम बोलेंगे इसका इफेक्ट कम है, इसका मोमेंट कम है, इसका डिस्टेंस कम है. दिस हैज गॉट larger effect, this has got larger moment, this has got larger radius of rotation. तो मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ रोटेशन पे. अगर बड़ा रेडियस होगा तो मोमेंट क्या हो गया? बढ़ गया. इफेक्ट, मोमेंट का मतलब क्या? इफेक्ट. फोर्स का इफेक्ट, उसी फोर्स का इफेक्ट बढ़ गया अगर ये डिस्टेंस बड़ा है. तो डिस्टेंस पर क्या चीज डिपेंड करती है? इफेक्ट. और उस इफेक्ट का नाम हमने क्या रखा? मोमेंट. तो फिजिक्स के रोटेशनल मोशन में एक क्वांटिटी है मोमेंट. व्हाट डज दैट मीन? इफेक्ट ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ मास, इफेक्ट ऑफ मोमेंटम, इफेक्ट ऑफ एनीथिंग. वो किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. अब उसका हमने फॉर्मूला बनाया कि मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा. तो हमने बोला किसका फोर्स निकाल रहे, किसका मोमेंट निकालना है? फोर्स का. मोमेंट शब्द का मतलब क्या है आपको याद है? इफेक्ट. किसका मोमेंट निकालना है? फोर्स का. तो फोर्स लो, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो. यहां पर इफेक्ट चाहिए, फोर्स लो, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो. तो हर जगह हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको उसका इफेक्ट मिल जाता है, हमको उसका मोमेंट मिल जाता है. ये एक क्वांटिटी किस में बनी? रोटेशनल मोशन में. क्या है ये क्वांटिटी? मोमेंट. कुछ बात समझ में आ रही है कि किसी भी चीज का इफेक्ट हम कम या ज्यादा कर सकते हैं. क्या करके? पॉइंट ऑफ रोटेशन से उसके डिस्टेंस को बढ़ाकर. जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना उसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा. आप यहां 10 न्यूटन लगा रहे हैं या यहां 10 न्यूटन लगा रहे हैं, इफेक्ट बढ़ जाएगा. हमने एक नट को टाइट करना है, छोटे पाना से टाइट करते हैं, खूब फोर्स लगता है. फिर से सुनिए, एक नट को टाइट करना है, हाथ से पकड़ के टाइट करते हैं, इतना सा रेडियस नहीं टाइट होता. फिर हम एक पाना लगाते हैं, पाना लगा के यहां से घुमाते हैं, इतना बड़ा रेडियस. रेडियस बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? मोमेंट. मोमेंट का मतलब इफेक्ट. तो हमारे इसी फोर्स का इफेक्ट बढ़ गया, वो नट खुल जाता है. देखा आप सबने? तो इस इफेक्ट का नाम क्या दिया? मोमेंट. और मोमेंट की कैलकुलेशन में कौन इंपॉर्टेंट हो गया? डिस्टेंस. तो मोमेंट का सिंपल रिलेशन बन गया, मोमेंट इज इक्वल टू क्वांटिटी दैट इज कैरेक्टरिस्टिक मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेट लाइन और नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन. इसको ना हम लोग अलग अलग नाम दिया करेंगे. जैसे ये जो है ना डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन, इसको हम बोलेंगे आर्म, आर्म ऑफ द रोटेशन. क्योंकि एक आर्म जैसे है, इस आर्म को हमने पकड़ा और ऐसे घुमा दिया. एक पाना को पकड़ा तो वो क्या बन गया? एक आर्म बन गया फोर्स लगाने के लिए. तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्म. और ये लेंथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए. तो ये है मोमेंट. फिर से मोमेंट को हम करेंगे क्वांटिटी. जैसे मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास, ये यहां पर मास m1 है, ये r1 है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है O. और यहां पर मोमेंट ऑफ मास कितना होगा? m1 r1. ठीक. फिर से यहां पर हमने फोर्स लगाया F1, ये डिस्टेंस है r1. मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा? F1 r1. ठीक है. बाद में जाके जब हम इसको बहुत स्ट्रिक्टली मैथमेटिकली पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू r1 क्रॉस F1. r पहले आता है. दिस बिकम्स ए पॉजिटिव साइन. बट दैट डजंट मैटर.
हमको अभी तो बेसिकली ये फंडा दिमाग में बैठाना है कि जितनी आर्म लंबी होगी घुमाने की उतना हमारा उस क्वांटिटी का इफेक्ट बढ़ जाएगा। दैट इज नोन एज मोमेंट। तो ये मोमेंट ऑफ मास, ये मोमेंट ऑफ फोर्स, ये दो चीजें हो गई। ओके तो ये हमारी क्वांटिटीज हो गई रोटेशनल मोशन की। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी इन रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में एक फ्री बॉडी जब घूम रही है तो वो किस पॉइंट के चारों तरफ घूमती है? सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, हम जैसा भी उसको घुमा दें ऑटोमेटिकली वो किसके चारों तरफ घूमेगी? सेंटर ऑफ मास के। अनलेस हम उसका एक पाइवट बनाएं। कैसे पाइवट बनाएं? हम चाहें तो बना सकते हैं, जैसे हमने यहां पर एक नट बोल्ट लगाया और यहां पर फोर्स लगा के ऐसे घुमाया, तो अब क्या होता है कि इसको मजबूरन इसके चारों तरफ घूमना पड़ता है। क्या ये नेचुरल फ्री रोटेशन है? नहीं है। इसलिए ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं है। कौन सा सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं है? सेंटर ऑफ मास नहीं है। हां, अगर मैं इसको ऐसा छोड़ दूंगा तो ये जब अपने आप घूमेगा, मैंने सब फोर्स हटा लिए, उस समय ये किसके चारों तरफ घूमेगा? सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमेगा। ये बात समझ में आई? जब हम एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं और फोर्स लगाकर किसी बॉडी को घुमाते हैं तो वो किसके चारों तरफ घूमता है? द पॉइंट ऑफ रोटेशन विच हैज बीन मेड बाय अस। ठीक है, और इसके लिए हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि इस तरह के जो रोटेशन होते हैं दैट इज ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स की जोड़ी के कारण होते हैं। लेकिन जब हम किसी बॉडी को फ्री छोड़ देते हैं और अपने फोर्स विड्रॉ कर लेते हैं कि तुम अपने आप घूमो, जिधर भी घूमना है घूमो, तो वो हमेशा कौन सा पॉइंट फिक्स रखेगी? सेंटर ऑफ मास के ही चारों तरफ घूमेगी, भले एक्सिस ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, जैसी भी। दैट इज सेंटर ऑफ मास। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब हम लोग अगला सेंटर ऑफ मास के बारे में स्टडी करेंगे।